In populous India, an estimated 300 million people, including its 104 million tribal population, reside in and around its forests. Livelihoods of these communities depend primarily on agriculture and non-timber forest produce, with livestock and manual wage labor forming the other important components. With conservation of biodiversity and people's survival at odds, there is an urgent need to implement solutions that respect nature and help local communities become resilient. In the Kanha-Pench corridor, one of the most important wildlife movement corridors in central India, connecting the iconic Kanha and Pench tiger reserves, such solutions are starting to take shape and make a difference. These solutions are being designed and implemented under the Building Adaptive Capacities of Communities, Livelihoods and Ecological Security in the Kanha-Pench corridor of Madhya Pradesh project. This multi-stake project is supported by the UN Climate Adaptation Fund and National Bank of Agriculture and Rural Development. It is executed by Madhya Pradesh Forest Department and RBS Foundation India, with on-ground support from Partners Foundation for Ecological Security and Watershed Organization Trust. यह जो परियोजना है, इसको चलाने का उद्देश्य मंडला, बालाघाट और सिवनी के जो क्षेत्र, जो लगे हुए क्षेत्र है, जो कान्हा और पेंच कॉरिडोर के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत हम अभी 24 गांव में यहाँ पे हमारे किसान भाइयों के साथ अभी हम काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट में निर्भरता है, उसे कम करना है, क्योंकि उनका बार बार जंगलों में आने जाने से वन्य जीवों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बदलते हुए वातावरण के प्रति अनुकूलन उनके अंदर बढ़े, उनकी क्षमता बढ़े। Multiple training sessions and exposure visits were organized for village representatives to develop their understanding on land treatment, climate-smart agriculture, alternative livelihoods, and role of community institutions in mainstreaming village development and conservation of natural resources. Village development committees having 50% women participation were formed, and vision and implementation plans were prepared, adopting a rigorous consultative process. पानी कम गिरने से जो था तो पानी सूख जाता था, जमीनों की कुछ फसलें मारी चल जाती थी और हमको पर्याप्त मात्रा में पानी मिल पाता नहीं था और खेती हम सही ढंग से नहीं कर पाते थे। इसलिए हमने यहाँ पे शुरुआत में जल एवं मृदा संरक्षण के काम किए, जिसमें हमने कुछ क्षेत्रों में हमने मिट्टी बंधाने का काम किया, हमने कुछ स्टॉप डैम्स बनाए और छोटी छोटी जो गतिविधि होती है जल एवं मृदा संरक्षण की वो एक्टिविटीज़ हमने ग्रामीणों के साथ पे की। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के साथ कन्वर्जेंस के माध्यम से भी हमने कुछ तालाब से हमने ग्राम विकास समिति में हम बैठक करते हैं। हर माह में बैठक करके हम उसमें प्रस्ताव लिखते हैं, उसमें सभी की सहमति होती है और प्रस्ताव पास होके हम गांव में उसका विकास करते हैं। पानी रोको मिट्टी रोको के माध्यम से हमारे खेतों में मेंढ बंधान किया गया, जिससे मिट्टी जो बहती थी वो रोकी गई। 200 से 300 हेक्टेयर में काम किया गया, जो पहले से ही अभी 10 साल 20 सालों से बंजर हुई थी, लेकिन आज अभी उसमें 1 साल से अभी वहाँ पर 2 फसल हो रही है, जिसमें धान की खेती हो रही है, गेहूँ, चना, लखोरी। खेती के मामले में और पानी के मामले में जो हमारी कुआं 4-6 महीने रहने के बाद सूख जाती थी, वो कुआं आज हमारे यहाँ पे माने साल भर पानी के गुजारे के लिए पानी रहने लगा, वाटर लेवल ऊपर आया। Considering the vital role of institutions in driving climate adaptation, focus was given to capacitate them. Formation of rules and regulations at the village level were facilitated to ensure common property resources are governed in an equitable and sustainable manner. समूह में बैठक रखे, समूह के सदस्य पूरे मिल के हमने मीटिंग में चर्चा की है कि अपन मछली पालन का धंधा चालू करेंगे। किराया से मंगवा लेते हैं, हमारे पास जाल नहीं है, तो ज़्यादा पानी रहता है तो हम लड़कन के हाथ में पकड़वाते हैं, उनको दे देते हैं 1-1 किलो मच्छी, और फिर डोबड़ी में आते हैं, वहाँ से बिक जाते हैं, आधे आधे बच जाते हैं तो इधर गांव में घुमा देते हैं। पैसे को फिर बैंक में ले जाके जमा कर देते
और बाकी है तो गांव में किसी को ज़रूरत पड़ती है पैसे इनकी तो उनको देते हैं, कोई बीमार हो जाते हैं, किसी को अर्जेंट ज़रूरी रहती है तो देते हैं। To address low agriculture productivity and help farmers adopt climate-smart and resilient agricultural practices, Farmer Field School's approach was adopted. Millets and indigenous paddy varieties were introduced along with an improved package of practices including SRI. जो ऊपर से वर्षा गिरी उसी के आश्रित हम खेती करते थे, तो उसमें किसी साल अगर पानी कम गिर जाने के कारण हमारे गांव में खेती से लाभ नहीं होता था। क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर पे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा गया था कि लोगों का प्रचलन में डीएपी, यूरिया या केमिकल उपयोग करते थे, जिससे कि वो हमारे वातावरण में भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा था। तो हमने लोगों को इसलिए घर पे ही साधारण जो खेतों में कचरा मिल जाता है या जंगल से ऐसी पत्तियां मिल जाती है, तो हमने उन्हें जैविक खाद बनाने की नई नई तकनीक बताई। केचुआ दिया गया तो केचुए के माध्यम से हम लोगों ने जैविक खाद का प्रयोग किए सर। अमृत पानी कम से कम 50 किसानों ने अमृत पानी सींच करके उसका फ़ायदा लिए। बहुमूल्य फ़ायदा हमको उससे मिला और मिल रहा है। इस गांव में हमको 10% मात्र गेहूं पका रहे थे, जिसमें आज हमको 80-90% गेहूं की मात्रा मिल गई। चना भी वैसे प्रकार से हमने बोए तो ज़्यादा मात्रा मिली, हमको ज़्यादा फायदा हुआ है। Progressive farmers were provided with improved equipment like zero tillage, sprinklers, thrashers to improve productivity while reducing labor and wastage. हमारे गांव में समिति के माध्यम से वाटर सेट से एक रीपर मशीन भी मिली है, जो हम समूह से चलाते हैं उसको। पहले हम गांव में यानी कि 1 एकड़ काटने के लिए लगभग 2 दिन लग जाता था, अभी हमको 1 एकड़ काटने के लिए 1 घंटा में कट के हो जाती है। और जो उसकी राशि किसान देता है उसको हम समूह में समिति में जमा करते हैं। खेत से हम गट्ठा ला रहे थे, धान ला रहे थे, पैरा ला रहे थे जानवरों के लिए, तो उसके लिए इन लोगों ने हमने मांग की कि हमको बैलगाड़ी चाहिए। गाड़ी के चक्के थे बैलगाड़ी के, तो वो लकड़ी के प्राप्त होते थे, तो साहब जंगल काट करके उनके पुट्ठा पकड़ी यूँ त्यों भरते थे। तो हमने कहा इसको कैसे बचाया जाए, पर्यावरण को भी बचाना है। इस माध्यम से हमने अपना विस्तृत जानकारी दे करके तो फिर गाड़ी के चक्के लोहे के हम लोगों को दिया गया, तो उससे हम लोगों को जंगल का कटना भी बंद हुआ। हम इन्हीं मीटिंग के माध्यम से जो हम मांग किए, फिर हमने कहा नहीं साहब हम लोगों को पानी चलाने के लिए पोंगरे दिए जाए, वो भी वाटर सेट ने हमें दिया, वो भी आधी कीमत में। फिर स्प्रिंकलर की मांग करे, वो भी दिए इन लोगों ने। To improve resilience of vulnerable families, including those landless and women-headed, alternative livelihood options like goatery and kitchen gardening are promoted. Prototypes that aim to reduce fuel, wood and timber dependency while reducing drudgery, particularly of women, are deployed. देखा गया कि पशुधन है उनके पास और उनका सही प्रबंधन का उन्हें ज्ञान नहीं था। हमारे लाइव स्टॉक की में हमने उनको ट्रेनिंग के माध्यम से कि पशु को कैसे रखा जाए और उनको क्या चीज़ हम प्राकृतिक जड़ी बूटी या घरेलू उपचार के माध्यम से हम उन्हें कैसे उनका इलाज कर सकते हैं, तो इसके विषय में हमने बहुत सारी उन्हें जानकारी दी। यहाँ पे डीवर्मिंग करवाए पशुओं में, तो इससे उनके पेट में जो कीड़े पड़ जाते थे उनमें फ़ायदा हुआ डीवर्मिंग करवाने से। उसके बाद वैक्सीन करवाए, यहाँ सबसे पहले BQ करवाए, फिर HS करवाए, फिर FMD करवाए। ये संक्रामक रोग जो फैलते थे हमारे यहाँ, उससे काफ़ी राहत मिली है। यहाँ अजोला लगवाए हमने यहाँ पे, तो अजोला में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने से पशु में बांझपन की समस्या कम आई है। और उसके बाद नेपियर भी लगवाया है हमने, उससे दूध में बढ़ोतरी हुई है और फैट बढ़ी है दूध की। जो कैटल वेंजर हमने दिया है, उससे जो नीचे खिलाते थे पहले, उसमें गंदगी जाती थी, मिट्टी विट्टी साथ में चले जाती थी चारे में, तो उससे फ़ायदा हुआ है हमें कि उनके पेट में मिट्टी नहीं जाती, तो कीड़े वीड़े नहीं पड़ते हैं। बकरियां थी वो उनका मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था, साल में उनका 2-4 बकरी मर जाती थी। जब हमने गोट सेट का निर्माण किया तो उससे ये देखा गया कि उनके मोर्टेलिटी रेट मृत्यु दर में भी कमी आई है। गोट प्लेटफॉर्म बनाया, उससे
बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जो बरसात में आने वाली बीमारी डायरिया, दस्त, ये बीमारियों से रोकथाम हुई। और जो कीचड़ हो जाता था नीचे जहाँ बांधने की जगह थी, उससे ऊपर रहती हैं बकरियाँ तो कीचड़ में नहीं रह पाती हैं। दूसरी चीज़, बरसात में जो जहरीले कीट घूमते रहते हैं, सांप बिच्छू वगैरह, उसके काटने से भी कई बकरियों की मृत्यु हो जाती थी। तो उसमें भी काफ़ी फ़ायदा मिला है हमें। हम यहाँ पे उन्नत पशु प्रशिक्षण की भी मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो उससे यहाँ के पशुपालन में काफ़ी सुधार हुआ है। किसान भाई बहुत सुधार कर रहे हैं, जिससे नांद टोकरी में दाना खिला रहे हैं, चारा खिला रहे हैं, तो उससे चारे की बचत हो रही है। स्वच्छ पानी पिला रहे हैं। पहले वो फॉरेस्ट में जाके लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसको खाना में उपयोग करते थे। अब उनका निर्भरता कम हुआ। बायोगैस से वो उनके जो मवेशी होते हैं तो उसका जो गोबर होता है उसका ही उपयोग करके वो खाद उससे अपना खाना बनाते हैं। तुम कितनी लकड़ी जलाते हो, ये पूछा गया। हमने कहा साहब एक दिन में 10 से 15 किलो लकड़ी जलती है। तो वाटर सेट ने हमको गोबर गैस बना करके, तो वो वहाँ भी हमारा जंगल का बचत हुई। हमारे गांव में जो सोलर लाइट मिला है, तो 2 से 3 दिन तक कभी कभी लाइट ही नहीं आती। तो बच्चों को भी उसमें पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। In the region of Kanha Pench corridor, biodiversity and ecosystem conservation plays an important role. Through our intervention, we have worked on developing approximately 1,003 hectares of land. In both Kharif and Rabi season, due to the increase in water, additional land brought under cultivation. And addition of new cultivation practices, agriculture production has increased by almost 30%. Respecting the ecological thresholds and mainstreaming conservation, aligned livelihood solutions is the way forward to ensure long-term climatic resilience in such vulnerable forest-dwelling communities, while also ensuring functionality of high conservation value landscapes like the Kanha Pench corridor. By doing so, the project is making strides in ensuring a resilient and bright future for man and nature.